क्वेश्चन नंबर 48। ऑक्सविक कंपनी। ठीक है ना। अभी पहला क्वेश्चन है तो पहले वाला पहला थियरी है। हम बी पार्ट पे आते हैं जरा पहले। Estimate using the data available the equity value of the combination of Oxford and Ludam company and the percentage gain in value which could be gained by Oxford company shareholders from the acquisition, considering whether it would fulfill the expected shareholder requirement of 15% gain in value. Okay. अभी ये Exhibit 1। Oxford company is a listed fruit flavored soft drinks manufacturer which has increased its profits significantly over the last few years and is looking to expand. Okay. Oxy Company's directors have identified Ludan as their potential target. Ludam is an unlisted family owned company and it produces a premium brand of soft drink, the Ludochard brand. Oxwick Company's directors are aware that the Ludochard brand is stocked in a number of retail outlets where Oxwick Company's drinks are not stocked. Assuming Ludam Company is acquired, Oxwick Company's directors believe that Oxwick Company will be able to spend more on marketing the Ludochard brand than Ludam Company. तो बेसिकली ल्यूडाम के पास एक ऐसा अच्छा प्रोडक्ट है जो ऑक्सविक कंपनी के पास नहीं है, लेकिन ल्यूडाम के पास पैसे नहीं है उसको मार्केट करने के जो ऑक्सविक के पास है। ठीक है ना। Increasing the sales significantly, it will also achieve other synergies which will increase the value of the value and justify the acquisition. However, one of Oxford Company's non-executive director believes that the acquisition will be of no value to Oxford Company because it does not reduce the risk. He feels that Oxford Company shareholders want the company uh, to make acquisitions which reduce risk and therefore increase company value. He believes that Oxford Company should therefore consider acquiring companies with different product streams or one or more of its suppliers। ठीक है। तो इसको बाद में चेक करते हैं। तो पहले ल्यूडाम कंपनी has remained static during the past 3 years. As it is an unlisted company, there is no information available about Ludam company's forecast cash flows. Oxwick company has 200 million shares in issue and its current market price per share is 11.52. Its most recent post-tax earnings were 128. Okay. Number of shares, इसका क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स 200 million। $11.52। तो मार्केट वैल्यू जो मेरे को मिलती है वो मेरे को मिलती है पोस्ट टैक्स अर्निंग्स जो थे मेरे, ये आ गया। मैं ईपीएस भी निकाल लेता हूँ, ऐसे तो जरूरत नहीं है बट मैं फिर भी एक बार निकाल लेता हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स मिलियंस में है ना, 128।
मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय पोस्ट टैक्स अर्निंग्स, कभी भी ऐसा ही करने का, मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय पोस्ट टैक्स अर्निंग्स ही करने का, मतलब फुल फिगर्स में तो ज्यादा एक्यूरेट आता है, इज व्हाट आई हैव नोटिस्ड। मैंने पी रेशियो निकाल लिया। लुडैम कंपनी हैज 80 मिलियन शेयर्स इन इशू, क्या बात है। मोस्ट रिसेंट पोस्ट टैक्स अर्निंग्स वर 52 मिलियन। Assume that Ludam company's current valuation can be obtained by using Oxford company's P ratio reduced by 40% to reflect Ludam company's unlisted status। तो मतलब हमारी कंपनी लिस्टेड है ना, इसका इसका तो यही मतलब हुआ। और हम लोग लुडैम को अनलिस्टेड बोल रहे हैं, तो ऑक्सविक तो फिर मतलब वो लिस्टेड हो गई ना। 40% से हम रिड्यूस कर रहे हैं इस चीज को, मल्टीप्लाई बाय 60, रिड्यूस बाय 40%, रिड्यूस बाय 40% अनलिस्टेड स्टेटस। ये मेरा हो गया पी रेशियो। तो ईपीएस इंटू पी रेशियो। पोस्ट एक्विजिशन में क्या कर रहा हूँ, पोस्ट एक्विजिशन में हम वो देखेंगे, बाद में देखेंगे वो। पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द कंबाइंड कंपनी आर एस्टिमेटेड टू बी 270 मिलियन, ठीक है। पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द कंबाइंड कंपनी आर एस्टिमेटेड टू बी 270 मिलियन। पोस्ट टैक्स कैश फ्लो जो है वो मेरे 270 मिलियन के हैं फॉर द फर्स्ट ऑफ द कंबाइंड कंपनी, ठीक है। और अभी फिर मुझे कंबाइंड कंपनी का वैल्यूएशन निकालना है ईच ईयर, मतलब फिर मेरे को ऐसे ऐसे वो बढ़ाते जाना है वो। These are estimated to increase by the following percentage each year as a result of sales volume increases, synergies and inflation, ठीक है। पोस्ट एक्विजिशन, रुक जाओ, फिर इसको है ना थोड़ा हमको प्रेजेंटेशन थोड़ा लो करना पड़ेगा, लो एंड का रखना पड़ेगा इसके लिए। पोस्ट एक्विजिशन कैश फ्लोज, पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज मुझे दिए हुए हैं इन्होंने, और मुझे बोला है कि ये पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज जो है ना, तो वो पहले साल के लिए 270 मिलियन है, लेकिन फिर वो बढ़ के 12, 10 और 7 हो रहे हैं ना। 10, 7। फिर उन्होंने क्या बोला, देखो, टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन इज अज्यूम टू बी इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नीडेड टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस। तो मतलब टैक्स अलाउेबल डेप और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सेम है, तो अभी इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, इसमें कुछ ऐड माइनस नहीं करना है क्योंकि दोनों की सेम ही है। तो टैक्स अलाउेबल डेप ऐड होगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू माइनस होगी, नेट इफेक्ट जीरो, कुछ नहीं। However, an additional investment in assets, including the working capital, will be required of 28 million in 28 million at the end of year one. Okay. Additional investment in assets at the end of each year will be pointed for every $1 increase in post-tax cash flows. ये भाई बराबर क्या है, 12, 10 और 7, 12, 10, 7 बराबर की है। अभी इंक्रीमेंटल कितना है, दिस माइनस दिस,
एडिशनल इन्वेस्टमेंट एक्सेस 0.8 और पोस्ट हैवी 0.8 से मेरे को बढ़ाना है ये सब चीजों को। After 4 years, the annual growth of free cash flows is expected to be 5% of for the foreseeable future. It is assumed that there will be no additional capital investment from year 5 onwards. ठीक है। कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमारा होगा ही नहीं, देखो हमारा कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट हम लोग ईयर 5 से करने ही नहीं वाले हैं। और हम लोग यहाँ पे एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर कर रहे थे पहले में। तो हम पता है क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, फ्री कैश फ्लोज लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे करके सम करेंगे। इनने बोला है देखो ईयर 5 से हम लोग को देखो, हम लोग को ना परपेचुइटी आने ही वाला है। तो मैं यहाँ पे परपेचुइटी कर देता हूँ। परपेचुइटी का ध्यान रखना, क्योंकि अब मैंने वो लाइन पढ़ी है 1 + G, कैश फ्लोज 1 + G डिवाइड बाई Ke - G। देखो कैश फ्लोज 1 + G जो है ना, उसके लिए हमें कैश फ्लोज ये वाले लेने हैं, पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे नीचे बोला है कि हम लोग एडिशनल कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं हमारे एसेट्स में। ठीक है ना? तो उसको ध्यान रखना। ग्रोथ 5% की है, इंटू 1.05 Ke - G वो करते हैं, Ke - G पे आते हैं बाद में। लेकिन मेरे को ये आता है, ठीक है ना, फिलहाल मेरे को फ्री कैश फ्लोज इतने के मिले हैं। द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एस्टिमेट भी 12%, चलो ठीक है मिल गया। तो Ke - G इज 12 - 6%, विच इज Ke - G। अभी ये यहाँ पे मैं करूंगा डिवाइड, और मैं ये गलती हमेशा करता हूँ, मुझे यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर लगाना है, प्रेजेंट वैल्यू पे आना है, और फिर मुझे टोटल वैल्यूएशन ऐसी मिलेगी। ठीक है ना, दिस इज माई टोटल वैल्यूएशन, ऐसा रहता है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिस्काउंट फैक्टर लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसके बाद कुछ आएगा। प्रेजेंट वैल्यूज पे आ जाता हूँ, फिर मैं यहाँ पे रिटर्न्स कर लेता हूँ कि मुझे कितने मिलेंगे फ्रॉम ईयर्स 1 to 4। 0.893, 0.77, 0.797, 0.712, 0.636। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंपनीज डेट टू इक्विटी, ये देखो ये वापस डेट टू इक्विटी 20:80, हमको इसका भी ध्यान रखना है भाई। ये भी ऐसे ये लोग देते हैं 20%, 80%, तो ये डेट का रहता है, ये इक्विटी का रहता है। उन्होंने हमको नीचे देखो क्या पूछा है, इक्विटी वैल्यू ऑफ द कॉम्बिनेशन पूछा है, तो ये वाली गलती भी नहीं करनी है। ये भी मैं गलती करता हूँ। मेरा वैल्यूएशन एक्चुअली बहुत वीक ही है, अभी थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ बेटर करने का, ऐसा है। ठीक है ना? मुझे फिलहाल के लिए सब कुछ सही लग रहा है। डायरेक्टर्स, ये तो हो गया ना। The directors of Oxford assume the shareholders of Ludam will require 50% of premium on the fair value of the share to satisfy their own shareholders. Oxford Company data believes that the acquisition should result in a minimum gain to their shareholders of at least 15%। ठीक है। ठीक है, लेकिन फिलहाल के तो यही आता है ना मेरे को, मार्केट वैल्यू। भाई लेकिन मेरे को कंबाइंड कंपनी का ये मार्केट वैल्यू है ना। हाँ फिर ठीक है, फिर तो फिर भी ठीक है, कंबाइंड कंपनी का मार्केट वैल्यू, देन देर इज नो। हाँ मुझे ऐसा लगता है। ठीक है ना? क्योंकि तुम अगर देखोगे यहाँ पे मार्केट वैल्यू मेरे को इन दोनों का कितना मिला था, इतना, है ना?
तो अभी जब मेरे को टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंबाइंड कंपनी इतना मिला है 38। नाउ कंबाइंड कंपनी समरी। सो ये कैसे होगा, मेरे को सिनर्जी टोटल माइनस ल्यूडैम माइनस ये वाली मतलब ऑक्सविक का मतलब मेरे को 1000 आता है। सब कुछ सही किया है मैंने, देखो देख लेते हैं। 11.52 का शेयर प्राइस बराबर है, ये सब सही है। नीचे 12% किया है, 12 - 6, 12 - 6 किया मैंने यहाँ पे। 12 - 5 होना चाहिए ग्रोथ रेट। यहाँ पे 5% से बराबर मल्टीप्लाई किया हुआ है। और कुछ यहाँ पे गलतियां वैसे तो वो मिल नहीं रही है। डिस्काउंट फैक्टर 0.636 का, 0.636 का ही है, 0.636 का ही है यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर। बराबर बराबर लगा है। 0.893 बराबर 0.797, 0.712, 0.636। हाँ ये सब सही है। ठीक है, फिलहाल के मेरे को भाई 1 मिनट 1000 से सीधा इतना कैसे गिर गया 1% से। भाई दैट्स क्रेजी भाई, इतना तो नहीं गिरना चाहिए था भाई। ये तो थोड़ा सीन हो गया। फिर थोड़ा सीन हो गया, एक मिनट चेक करते हैं ऑक्सफोर्ड कंपनी का सही है कि नहीं है। अच्छा रुक जाओ, ये क्या मैंने निकाला है वैसे, ये मैंने सिर्फ आधा ही किया ना शायद मैंने ये क्वेश्चन। मैं सिर्फ टोटल इक्विटी वैल्यू ऑफ द कॉम्बिनेशन इक्विटी वैल्यू बराबर निकाली। परसेंटेज गेन निकालना है, हाँ ठीक है। मैं पहले इक्विटी वैल्यू चेक कर लेता हूँ जरा, क्योंकि वरना फिर परसेंटेज गेन तो चुन ही जाएगा, मतलब खराब ही आएगा। रिलायंस कंपनी का वैल्यूएशन बिल्कुल सही आया। ये सही है, ये सही है, ये सही है। गेन वेन पे जाने दो, गेन वेन सब छोड़ दो। कंबाइंड कंपनी का इक्विटी वैल्यू 3412, हाँ ऐसे ही कुछ तो आया है। 3412.9 आया है, 3412.7। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। अभी मेरे को गेन निकालना है ना, गेन फॉर ल्यूडहैम कंपनी शेयर होल्डर्स। तो अभी मैं क्या अज्यूम करके जा रहा हूँ कि यहाँ पे इन्होंने वैसे तो कुछ ऐसा दिया नहीं है कि शेयर फॉर शेयर है, कैश ऑफर, ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो प्योरली मुझे लगता है सिर्फ यहाँ पे मुझे मार्केट वैल्यू ऑफ ल्यूडैम कंपनी, इस पे 15% का प्रीमियम दे देना है। मैं 15% का प्रीमियम इनको दे देता हूँ। तो वो कितना आया, क्या अमाउंट, अरे अमाउंट लिख दिया खाली। अमाउंट टू बी पेड फॉर एक्विजिशन, ठीक है ना। गेन फॉर ऑक्सविक कंपनी टोटल सिनर्जी आई थिंक होगा, मतलब मुझे मुझे लगता है 15% से ज्यादा ही होगा, बिकॉज 547 माइनस ये कर रहा हूं मैं, सिनर्जी टेकन अवे बाय ल्यूडैम कंपनी, सिनर्जी लेफ्ट, तो दिस डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ ऑक्सविक कंपनी 20, सो दिस इज माय गेन। तो हो रहा है, तो ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई, 20 and 15%। 20.1 परफेक्ट, 20.1, 20.09 परफेक्ट। जाने दो ये सब, जाने दो। अभी ये भी हो गया, 10 मार्क तो चलो मिल गए यहाँ पे इजीली। अभी आते हैं डिस्कशन पे। सिर्फ इतना ही था ना इसमें, कुछ और नहीं बताना ना। नहीं, बस कैलकुलेशन ही था, उसके बाद सी पार्ट चालू हो जाता है इनका। यस, सी पार्ट पे आते हैं। डिस्कस द अजम्पशन मेड इन कैलकुलेशंस ऑफ पार्ट बी। हाँ, अजम्पशन हमने क्या क्या किए हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो सेम रहेगा, ये हमने मतलब वो रखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% कहाँ से मिला है, हाँ हमको पता नहीं है। हमने ये भी अज्यूम किया हुआ है कि देखो, ये तो इन्होंने खुद ने बोला है, डिड द डायरेक्टर्स ऑफ ऑक्सफोर्ड कंपनी अज्यूम दैट शेयर होल्डर्स ऑफ ब्लूडैम विल रिक्वायर 15%, हाउएवर दे माइट रिक्वायर इवन मोर देन दैट। देन ये 12 10 7 का क्या गेन है, मतलब वो कैसे आया, ये हमको पता नहीं है। फिर ये पी रेशियो हमने 40% से कम, एक्चुअली ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही हमको मतलब डिट्टो टू डिट्टो छापना है। और फिर ये भी एक बहुत बड़ा अजम्पशन था कि हम लोग को आगे चल के कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली ईयर 5 से। ये सब है बस, और तो कुछ है नहीं है, ये सब सेम है। वैल्यूएशन ऑफ लुडैम कंपनी यूजिंग द पी रेशियो ऑफ ऑक्सफोर्ड कंपनी एंड रिड्यूसिंग इट बाय 40% मे बी क्वेश्चनेबल। बराबर है। इट इज नॉर्मल टू रिड्यूस द पी रेशियो
of a listed company to arrive at the appropriate ratio for an unlisted company, but 40% is an arbitrary percentage, possibly inaccurate. In addition, the only reason for the reduction in Ludam company is unlisted, so it assumes that Oxwick company and Ludam company are similar in other ways. Whereas Ludam company's recent profits have been static, while Oxwick company's profits have increased. There is no guarantee that Ludam company's directors and shareholders will agree with the valuation and accept the price offered by Oxwick. Oxwick companies adding the premium to valuation to determine what Ludam company shareholders will accept may be realistic. However, Ludam company shareholders are likely to have more information about company's future prospects and cash flows and may therefore determine a higher and more possibly a realistic and possibly more realistic valuation using free cash flows. तो ये लोग अपना खुद का मतलब वैल्यूएशन लेके आएंगे। फिर ये लोग वैल्यूएशन ऑफ द कंबाइंड कंपनी, ये देखो 5%, हाँ 5% का ग्रोथ ये एक है। हाँ ये देखो assumption that no additional मतलब वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड। फिर ये देखो सारे ही फिगर्स अनलिस्टेड है, जैसे कि सेल्स क्वांटिटीज प्राइसेस। अरे हाँ, एक और था कि eBay की बेसिकली ये लोग ने हमें डायरेक्टली पोस्ट टैक्स प्रॉफिट्स दे दिया है। तो वो टैक्स के अंदर स्लैब रेट्स यूज किए कि नहीं, सेलिंग प्राइस क्या यूज किया है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वो सब कुछ बताया ही नहीं है ये लोग ने। आर देर एनी पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग कमिंग इन टू प्लेस? तो क्या कॉस्ट टू कॉस्ट में बेच के कम प्राइस पे ये चीजें बेची जा सकती है, वो सब सब चीजें इसमें आ जाएंगी। ये तो फालतू अजम्पशन में थोड़ा, एनपीवी के अजम्पशंस को लेके मैं थोड़ा चिल हूँ। बीएस ओपी फिर भी थोड़ा मुश्किल है, ये तो ठीक है। अब आगे एक मिनट। Discuss the non-executive director's views in relation to Oxford Company's acquisition strategy and the acquisition of Ludam Company। ये जो एनईडी था ये आई थिंक खुश नहीं था ना, बिकॉज ये बोल रहा है कि शेयर होल्डर्स को डाइवर्सिफिकेशन लगेगा। बात तो सही है, बट देखो जब मैं नीचे गया था तो इन्होंने पता है क्या बोला था कि ये अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है ना। तो ल्यूडैम तो ऑक्सफोर्ड कंपनी एक्वायरिंग एन अनलिस्टेड कंपनी माइट पुट the shareholders in a little skeptical position that whether this acquisition was really required. Secondly, unlisted family owned companies are usually quite risky because of their share percentage distributions। ये हम बोल सकते हैं, पता नहीं मेरे को एक्चुअल में, लेकिन ये मुझे लगता है कि फैमिली ओन कंपनीज के बारे में मतलब शेयर मतलब वो शेयर परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा स्केप्टिकल हो सकता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। सेकेंडली ये लोग ने क्या बोला है, तो डायरेक्टर का ये कंसर्न बिल्कुल सही है और बात बिल्कुल सही है कि डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस द अनसिस्टमैटिक रिस्क एंड दस दैट डाइवर्सिफाइंग इनटू वेरियस प्रोडक्ट रेंजेस डज डिक्रीज द रिस्क ऑफ द कंपनी नॉट इनकरिंग एनी प्रॉफिट्स और इनकरिंग एनी लॉसेस बेसिकली, ठीक है ना। हाउएवर the fact that the blame has been put on the shareholders, that the shareholders would want the company to diversify वगैरह इसने बोला है, that is wrong because दिस इज अ मतलब वो लिस्टेड कंपनी ना ऑक्सविक। अरे हाँ ये तो एक्चुअली इनके पहले लाइन में ही दिया था, मुझे उतना लॉजिक लगाने की जरूरत थी नहीं। मैंने क्या लगाया कि मतलब वो इन्होंने ऐसा बोला है कि लुडैम अनलिस्टेड है मतलब हम लोग मतलब वो लिस्टेड है। एक्चुअली इन्होंने पहले लाइन में ही दिया था कि वो लिस्टेड है। तो बिकॉज हम लोग मतलब वो लिस्टेड है तो हमारे पास इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स होंगे, और इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स आर वेल केपेबल एंड वुड हैव ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड देयर पोर्टफोलियोज with various amount of investments. Thus, the blame that company is diversifying its portfolios for the shareholders is an unrealistic assumption. Again, assumption नहीं actually, an unrealistic statement ये बोल सकते हैं। However, if Oxford company is trying to reduce the risk for themselves, then this might be true. However, so is not the case, is what we can see. अभी और क्या बोल सकते हैं कि हमें क्या बताना है एक्चुअली। देखो अगर पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ ना एंड इफ दिस इंडस्ट्री बूम्स, देन ऑक्सविक कंपनी विल गेन सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स बिकॉज पॉजिटिव कोरिलेशन है, राइट। तो दोनों के प्रॉफिट्स ऊपर जाएंगे एंड वाइसे वर्सा, ये हम बोल देंगे। Teaching that only one of the NEDs believes that the acquisition will add no value. However, the rest of the board is quite confident and quite enthusiastic about the acquisition. Uh,
Thus, the acquisition will proceed as the majority supports the acquisition process. पता नहीं, इतना बोल सकते हैं तो देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला है. The NED assumes that पहले तो इन्होंने ऐसे लिखा है, shareholder views acquisition of supplier, acquisition of Ludan company. The NED assumes that the shareholders will welcome any acquisition which reduces risk. They are diversifying into new products with different income streams and possibly more certain cash flows can reduce risk in the eyes of the shareholders and the debt providers. The reduction in risk may reduce the cost of capital and increase the value of the. हाँ, right. Okay. Uh, The reduction in risk may reduce the cost of capital and increase the value of the company. However, shareholders may not welcome acquisitions which reduce risk. However, shareholders may not welcome acquisitions. However, shareholders may not welcome acquisition which reduces risk. Clientele theory suggests that companies will attract shareholders which are broadly happy with the current mix of risk and return. ये थोड़ा मेरे को नहीं जमा. Shareholders may not welcome acquisition which reduce risk. Actually, usually shareholders करते हैं, they usually accept, but I think ये आंसर को फ्रेम करने के लिए और because सारे ही odds against है, they have given this line. वरना वरना usually shareholders support the reduction of risk, लेकिन institutional shareholders go for मतलब वो profits, ऐसा रहता है, मतलब for positive correlations with the company ऐसा. ठीक है. द शेयर होल्डर तो मतलब दे विल बी हैप्पी विद द करंट मिक्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, ऐसा इन्होंने बोला है. शेयर होल्डर्स मे नॉट वेलकम डाइवर्सिफिकेशन इनटू न्यू प्रोडक्ट्स. दे मे डाउट वेदर ऑक्सविक मैनेजमेंट विल बी एबल टू अचीव गेन्स इन वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट व्हिच दे हैव नो एक्सपीरियंस मैनेजिंग. शेयर होल्डर्स मे आल्सो बिलीव मे बी एबल टू डाइवर्सिफाई मोर इजीली एंड चीपली देन ऑक्सविक कैन इटसेल्फ. तो ये बात इन्होंने नीचे बोली कि शेयर होल्डर्स खुद से भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. एक्चुअली ना ये एक लाइन थी जो मैं मतलब बताना भूल गया कि बेसिकली शेयर होल्डर्स का कैसा है पता है कि अगर हम लोग डाइवर्सिफिकेशन के लिए गए ना, तो ये भी एक है कि शेयर होल्डर्स माइट थिंक दैट वी आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट आवर प्रोडक्ट एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन. तो ये भी एक पॉइंट है. एक्विजिशन ऑफ फॉर सप्लायर, बाइंग अ सप्लायर वुड बी अ वे ऑफ रिड्यूसिंग रिस्क, particularly given Oxford company's dependence on the supply of ingredients for its drink. तो ये वही वही मैंने जो वो नीचे ट्रांसफर प्राइस का बोला था, ये उन्होंने ऊपर डाला है एक्चुअली. पार्ट ए में डाला है, पार्ट सी के जगह पे. Acquisition may be most effective method of guaranteeing a source of supply. However, Oxwick can currently compel its suppliers to offer the best deals in price and delivery by using the competitive tendering. If it owns a supplier, the competitive element it is lost and cost may increase. ये हमारा supplier था क्या? रिटेल आउटलेट्स में स्टॉक्ड है ये. मैंने भी दिया तो नहीं है. नहीं. हाँ, सप्लायर्स सप्लायर्स को कंसिडर, अच्छा बाकी के अलग सप्लायर्स, मतलब ये ल्यूडैम कंपनी के जगह पे हमें किसी सप्लायर्स को एक्वायर करना चाहिए. मेक सेंस. तो इन्होंने एक्चुअली इस पॉइंट की तारीफ भी की है. इफ इट ओन द सप्लायर द कॉम्पिटिटिव एलिमेंट इज लॉस्ट एंड कॉस्ट में बी में इंक्रीज. तो ये इन्होंने लास्ट में बोला है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एलिमेंट में भी लॉस्ट, लेकिन बाकी इन्होंने यहाँ पे पूरी मतलब वो तारीफ ही की है कि बाइंग अ सप्लायर वुड बी अ वे ऑफ रिड्यूसिंग रिस्क, particularly given Oxford companies dependence on the supply of ingredients for its drinks. Acquisition may be most effective method of guaranteeing a source of supply. However, Oxwick यहाँ से फिर उन्होंने मतलब प्रैक्टिकली बोलना चाहिए, मतलब वो स्टार्ट किया कि however Oxwick company can currently compare its suppliers to offer best deals. एक्चुअली हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्विजिशन के बाद हम लोग क्या बोलते हैं वो बल्क परचेसिंग भी कर सकते हैं, जिसके वजह से अच्छे खासे डिस्काउंट्स और बेस्ट डील्स मिल जाएंगे. आगे. Acquisition of Ludam Company. The argument that as Ludam Company produces the same product as Oxwick Company, acquiring it will have no value is very questionable. The acquisition offers market diversification into new outlets, possibly giving access to Oxwick Company's other products. Oxwick Company appears also to have greater potential resources to market and sell Ludo
chart brand, the assumption that there will be synergies appears reasonable. The acquisition could result in economies of scale, production efficiencies, wider distribution channels, and greater market power, which are more likely to be exploited given Oxford Company's success in the soft drink industry. Shared brand and Ludo shared brand and the assumption that there will be synergies appears reasonable. The acquisition could result in economies of scale, well, production efficiency, wider distribution and greater market power, which are more likely to be exploited given the Oxford Company's success in the soft drink. तो ये सब हमने बोला था कि synergies तो होंगी, because market diversification. Acquisition offer market diversification to new outlets. Okay, new outlets में possibly giving access to Oxford Company's other products. ठीक है, फाइन। और एक्चुअली वैसा वो सब भी है कि इनके आउटलेट्स बहुत ज्यादा है इनके, मतलब वो रिटेल आउटलेट्स में, मतलब वो लूडो चार्ट ब्रांड है वगैरह, तो सेल्स बढ़ सकते हैं। तो ये एक्चुअली काफी अच्छा चीज है। तो हमको हमको एक्चुअली अच्छा ही बोलना है इसके बारे में, इस आंसर में बुरा नहीं बोलना था।